What a delight it was to see the wonderful work that our young startups are doing. I've still not been able to see the entire Startup Mahakumbh exhibition, but the flavor that I got, the taste of the innovative work that our young men and women have created through their sheer tenacity, hard work, spirit of inquiry, research, innovation is music to one's ears. I've so far had a chance only to visit 2 of the various pavilions in the entire Bharat Mandapam Startup Mahakumbh 2025. You can see drones of world-class quality. You experience technologies created by young boys and girls on energy efficiency, on powering electronics. I've had a flavor of the defense equipment that the young startups are creating, how fintech is becoming a source of empowerment for the common citizen, how agri-tech, and we saw some wonderful work done by a young lady entrepreneur to take equipment for our farmers to the farms at affordable prices. We saw the physically handicapped being empowered through innovative, well thought of solutions, both for their livelihood and for their convenience. Truly has been a delight. And this is the base, this is the foundation on which I am confident India will foray in a very big way into the world of innovation, will make our presence felt at the global stage on products of deep significance, whether it's deep tech, AI, machine learning, how we can do data analytics smarter and better, and truly a experience of a lifetime to visit Startup Mahakumbh. I'm grateful to Secretary and his team. I'm grateful to the organizers of this Mahakumbh, and it's a lot of patience, lot of effort, lot of sacrifice to make such a wonderful platform for the youngsters. And I go back extremely satisfied with the work done by our young startups. I'm very confident that my message to the startups has been received, save and except by some Congress party handles who are hell-bent on manufacturing a controversy where there is none. By and large, the feedback I have received is young India is raring to go and they are ready to capture the world. ये स्टार्टअप्स की अपनी काबिलियत से ये यहाँ तक पहुँचे और तेज गति से वृद्धि करेंगे। मैंने बड़ी सोची समझी बात रखी थी कल सबके समक्ष, और मेरा मानना है कि अब समय आ गया है कि भारत के निवेशक रिकग्नाइज करें कि ये पूरा जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है इसकी संभावनाएं बहुत है, इसमें हमारे युवा युवती बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और इसको अगले स्टेप, अगले लेवल तक लेके जाने में मुझे लगता है भारत का निवेश, भारत के लोगों का जुड़ना इसको और तेज गति देगा। देखिए, अब ये जो स्टार्टअप महाकुंभ हुआ है, इस स्टार्टअप महाकुंभ में कुछ विशेषताएं हैं। जैसे आधे से अधिक जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये पॉड्स के माध्यम से इन सबको मुफ्त में अपनी चीज़ें, अपनी अनुसंधान को दिखाने का मौका मिला है। लगभग 1500 ऐसे युवा युवतियों को, स्टार्टअप्स को, ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टार्टअप्स को मुफ्त में अवसर दिया गया कि यहाँ के वो दुनिया को बता सके वो क्या काम कर रहे हैं, क्या सोच है। एक इसकी ये विशेषता है। दूसरी है इसकी विशालता। एक अंग्रेजी में कहते हैं कि इट रब्स ऑफ ऑन यू,
जब युवा युवती, और मुझे सुनने में आ रहा है कि कल 27,000 लोग आए थे, आज उससे भी अधिक लोग आए, और कल तक का आंकड़ा तो शायद 1 लाख पार हो जाएगा। अब जब ये 1 लाख जो दर्शक आते हैं यहाँ पे, अलग अलग लोगों को देखते हैं, अलग अलग चीज़ों का अनुभव करते हैं, उनको भी प्रोत्साहित करने का एक मौका बनता है। वो भी यहाँ से और संकल्प लेके जाते हैं कि हमें भी सफल होना है, हमें भी कुछ नई चीज़ करनी है, कि हम युवा युवतियों को एक चैलेंज मोड पे जोड़ें और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए कैसे हम उनको आर्थिक भी अवार्ड दें और एक प्रोत्साहन भी मिलता है। कई जगह मैं जा रहा हूँ तो हमारे बहनें, हमारे युवा साथी बताते हैं कि आपने हमें लास्ट ईयर नेशनल स्टार्टअप अवार्ड दिया था, कोई कह रहा है आपने मुझे रिकग्नाइज़ किया था या भाषण में मेरा जिक्र किया था। तो एक प्रकार से एक उत्साह बढ़ाने का भी ये जो पूरा ऑर्गेनाइज किया गया है स्टार्टअप महाकुंभ, इसका बहुत बड़ा योगदान है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो लक्ष्य कल रखे हमने, एक तरफ कि स्टार्टअप का इकोसिस्टम अब बड़ी ऊंचाइयों पे जाएगा, और मैं समझता हूँ एक इंस्पायर करने का कोशिश की गई थी, बजाय के जो कुछ लोगों ने उसको विवादित ढांचे में डालने की कोशिश की। पर स्वाभाविक है, कांग्रेस वालों ने तो सोचा भी नहीं था कि कभी स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहन दे। कभी आपने सुना था कांग्रेस को? किसी ने भी कांग्रेस से सुना था कि स्टार्टअप की चिंता की हो, उसको बढ़ाना? उनको सिर्फ आलोचना करना आता है, और ये नकारात्मक सोच ही कई बार देश को पीछे छोड़ देती है। सकारात्मक जो सोच होती है वो बड़े लक्ष्य की तरफ जाती है। और कल का जो मेरी बात थी उसको इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि अब भारत में पायदान तैयार हो गया, द थ्रेशोल्ड, द फाउंडेशन इज रेडी, नींव रख दी गई है, और इस नींव के ऊपर हमारे युवती अब बड़ी छलांग लेने के लिए उत्तेजित भी है, तैयार भी है, और पूरे होशो हवास में, पूरे विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ नई ऊंचाइयों छूने के लिए आगे बढ़ रहे। मैंने कहा ना, कांग्रेस की सोच तो बड़ी छोटी रहती है, वो बजाय नकारात्मक सोच के कुछ और बात कर ही नहीं सकते, उनको ध्यान में ही नहीं आ रहा है। और जो हमने बात आप सबके समक्ष भी रखी है कि भारत कैसे तेज गति से प्रगति कर रहा है, ये उनको पच नहीं रहा है। हम 11वीं से आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, उससे देशवासी तो खुश हैं। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार चुन के प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो स्वाभाविक है राहुल गांधी जी दुखी होंगे, इसलिए आलोचना करेंगे, कोशिश करेंगे हमारे स्टार्टअप्स को गुमराह करने का, कोशिश करेंगे बताने का कि यहाँ के हमारे जो युवा युवती काम कर रहे हैं उसकी अपमान किया गया। मैं समझता हूँ जो कल का मैसेज है, उस मैसेज को इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि आज देश में लाखों करोड़ों लोगों को मौका और अवसर मिला है स्टार्टअप इंडिया के तहत कि वो भी कुछ कर सके। कुछ लोग फाउंडर्स बनते हैं, कुछ लोग जुड़ते हैं, नौकरी करते हैं, हमारे गिग वर्कर्स इसके साथ जुड़ते हैं, हमारे आर्टिसंस जुड़ते हैं। जब हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम में कुछ स्टार्टअप्स आते हैं, अभी टॉयज़ के स्टार्टअप्स मैंने देखे, कई हमारे स्टार्टअप्स जुड़ते हैं कि वो नए नए प्रकार के कुछ वस्तु बनाते हैं जिसकी अपनी विशेषता है। अब मिलेट्स है, मिलेट्स के ऊपर आपने देखा पूरी दुनिया में आज भारत का बोलबाला है, एक विशेषता है उसकी, नई तरीके से, नई सोच के साथ उसको न्यूट्रिशन से जोड़ा है। टर्मरिक बोर्ड का मैं अभी प्रोडक्ट्स देख रहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने टर्मरिक बोर्ड हाल में ही बनवाया, जिससे जो हमारे हल्दी बनाने वाले लोग हैं, हमारे किसान हो, हमारे छोटे उद्योग चलाने वाले लोग हो, जो टर्मरिक को, हल्दी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, आज विश्व में हल्दी की पहचान है, इसको मेडिसिनल प्रोडक्ट के रूप में देखा जाता है। हमारे गिग वर्कर्स हैं, सेवा करते हैं लोगों की। देश भर में कोविड के समय इन्होंने किसी को भूखा नहीं रहने दिया, सबके घर में वस्तु जो उनकी ज़रूरतें थी उसको पहुंचाया। अब मोदी जी तो उनकी चिंता करते हैं कि गिग वर्कर्स को भी आयुष्मान भारत से जोड़ा जाए, उनको मुफ्त में इलाज मिले। कोशिश करते हैं कि कैसे इन सबके जीवन में स्किल डेवलपमेंट से अब ये अगले पायदान पे जाएं। स्वाभाविक है कोई व्यक्ति जीवन भर
सिर्फ एक ही काम नहीं करना चाहते, आगे बढ़ना चाहते। और मैं तो हैरान होता हूँ जब मुझे कोई बताता है कि मैं बनारस से आया हूँ और मैंने ये नई शोध की। कोई मुझे बताता है कि मैं भदोई में काम करता था, मुझे ये आइडिया अच्छा लगा, मैंने इस काम को आगे बढ़ाया। कोई मुझे बताता है कि हमने पूरा 100% भारत में डिज़ाइन और डेवलप करके एक अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी का ड्रोन बनाया जो देश की डिफेंस में भी काम में आएगा। तो मुझे लगता है कि ये देश बढ़ रहा है, बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। कुछ लोगों को उसमें बड़ी तकलीफ हो रही है, उनको चिंता हो रही है कि हम एक के बाद जनता हमें घर बिठा रही है, ठुकरा रही है। फिर चाहे वो केंद्र में चुनाव हो, चाहे वो हरियाणा में हो, महाराष्ट्र में, हमारी मुंबई में हो जहाँ से मैं आता हूँ, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो जहाँ सबको घर बिठा दिया और हमारी बहन रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाया। तो मैं समझता हूँ इससे बौखला गया है विपक्ष। आज मैंने सोशल मीडिया पे भी देखने की कोशिश की, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और उनका इकोसिस्टम ने मेरे कल की बात को समझा नहीं।